when you were born you were very small in size. Now you have grown up to a very बहुत आप अपने पेरेंट्स के हाइट के हो गए रहोगे या फिर पेरेंट्स से भी ऊंचे हो गए रहोगे. तो why can you tell me the reason how from a small baby you have been converted to a such heighted person? जेनेटिक मतलब Growth. Growth. Very good. So growth कैसे होता है बेटा? How the growth takes place? Multiplication of cell division. Yes, very good. Multiplication of cell. ठीक है. एक जो छोटा सा प्लांट है वो ट्री में बदल जाता है. एक छोटा सा बच्चा जो है वो मैन में बदल जाता है या वुमेन में बदल जाता है. It is all because of continuous cell division taking place in our body. ठीक है. So cell division is a very 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 important process for the wear and tear of our body. How wear and tear of our body? Because see every day हमारे बॉडी में कुछ डेड सेल्स होते हैं और कुछ नए नए सेल्स तैयार होते हैं. ठीक है. एवरी डे इन अवर बॉडी कुछ डेड सेल्स होते हैं और नए नए सेल्स तैयार होते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट दी अगर हमें कभी चोट लग जाती है, ठीक है, तो हमारा वो हील हो जाता है. तो वो हील किसके कारण होता है? अगेन बिकॉज ऑफ दिस सेल डिविजन. Yes, no doubt cell division is also very important. It plays a very important role in reproduction also, because to maintain the gametic chromosome. Now what do you mean by this gametic chromosome? See, जो भी मेल गैमेट होता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं और जो फीमेल गैमेट होता है जिसको हम एग बोलते हैं या फिर ओवा या ओवम बोलते हैं, उसके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है. Yes, the total chromosome in our body is कितना? How much? Dash. How much 26. is the 32. ये कौन 32 बोल रहा है बेटा? No. 46. Yes, I got it. चलो, so the total number of chromosome in our body is 46. How this 46 is divided? Please note down. 46 is divided into 2. 44 are 23. 44 are 23. 44 plus XX or XY. Yes, very good. 44 are the autosomes and 2 are sex chromosomes. Allosome. 2 are sex chromosome. ठीक है, please note down. 44 are autosomes and 2 are sex chromosome. Now let me tell you what is the difference between the autosome and the sex chromosome. ऑटोसोम का मतलब है जो हमारे बॉडी कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है. तो ये जो 44 क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं. जैसे कि कलर ऑफ योर आईज, टेक्सचर ऑफ योर हेयर, ठीक है, कलर ऑफ योर हेयर, Color of skin. yes, color of skin, yes, your height, yes, everything is been decided by this 44 set of chromosome, that is the autosome. So autosome क्या करता है? बॉडी कैरेक्टर्स डिसाइड करता है. ठीक है. और ये जो ऑटोसोम्स हैं ये हमारे सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट हैं. अभी मैंने एक और टर्म को इंट्रोड्यूस किया आपके सामने, सोमैटिक सेल. सो प्लीज नोट डाउन न्यू चिल्ड्रंस, सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है बॉडी सेल्स. अगेन हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं. एक होता है सोमैटिक सेल, मतलब कि पूरा बॉडी का सेल, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हमारे सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही प्रेजेंट हैं. हैव यू ऑल नोटेड डाउन? Yes. तो सेल में भी दो टाइप है. न्यू स्टूडेंट्स आई एम आस्किंग टू देम. सो सेल में भी दो टाइप है, as the somatic cells which is also called as the body cells, and the next is reproductive cell which is exclusively present in the reproductive areas like the testes and the ovaries. जहाँ पे जर्म सेल बोलते हैं. हाँ, उसे जर्म सेल भी बोलते हैं ना? यस करेक्ट, उसे जर्म सेल भी बोलते हैं. रिप्रोडक्टिव सेल को ही हम जर्म सेल भी बोलते हैं. ठीक है.
Very clear, bachcha? Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. Yes. okay. So no need to tell every time yes. I can understand that. So just जो भी questions पूछूंगी, tell me the answer for the same. ठीक है? So Okay, ma'am. next thing is what I was telling is about कि जो cell division है, ये process इतना important क्यों है और आपको क्यों पढ़ना चाहिए? Because हम grow हो रहे हैं because of cell division. हमारे बॉडी में gametes बन रहे हैं, yes, respective gametes बन रहे हैं like sperm and eggs. ठीक है, is all because of this cell division. Yes, our wear and tear of the body is taken by with the help of cell division, है ना? हमारा blood cells जो है, you know that कि हमारे जो blood cells है, they have a specific lifespan. जैसे कि अगर हम आरबीसी की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आरबीसी जो है वो 120 डेज जिंदा रहता है, उसका लाइफ स्पैन उतना है, उसके बाद वो डेड हो जाता है, फिर नया आरबीसी बनते हैं. तो ये सो जो प्रोसेस है, तो अपना पूरा बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल. ऑफ दिस सेल many cells are becoming dead and many cells are being formed day by day. So this formed cells is because of this cell division. So and therefore you should learn in detail about this. In 11th standard, अभी तो I don't know, college तो खुला नहीं है, but you will be doing practical related with this cell division, and it is a very interesting practical to see the stages of mitosis in a cell division. You can literally see all the stages of cell division under the microscope. ठीक है, उसके लिए आप ओनियन रूट की टिप का इस्तेमाल करते हो. यस, ओनियन रूट टिप कट करने के बाद, हु इज टॉकिंग बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी म्यूट योरसेल्फ. सो ओनियन रूट टिप का हम इस्तेमाल करते हैं और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं as on of the regular practical. Now, growth and reproduction of all organism depends upon the division and the enlargement of the cells. Next, let us see. So, the mechanism of division and multiplication. See, in biology, na, division का मतलब ही multiplication है. आप मैथ्स में बोलोगे तो डिविजन का मतलब तो नंबर घटना चाहिए ना, पर बायो में ऐसा नहीं है. जब मैं बोलूंगी सेल डिवाइड हो रहा है, मतलब सेल बढ़ रहा है. यस, 1 से 2 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, 4 से 8 बन रहा है, या फिर मैं मल्टीप्लाई भी वर्ड यूज कर सकती हूँ. सो इन बायो डिविजन मीन्स मल्टीप्लीकेशन. So division and multiplication of cell together is called as a cell का reproduction. Cell reproduction क्यों बोल रहे हैं हम लोग? Reproduction. Re means वापस production, मतलब एक सेल से 2 सेल बनना, 2 से 4 बनना, तो वापस प्रोड्यूस हो रहा है. So reproduction. Now let us first learn the topic as cell cycle. Please note down. अभी सेल डिवीजन शुरू होने के पहले प्रिपरेशन होता है. यस, तो ये जो पूरा सेल डिवीजन का जो पूरा साइकिल है, यस, पूरा जो इवेंट है, दैट इज ऑल टुगेदर कॉल्ड एज अ सेल साइकिल. सो इट इज अ लाइफ पीरियड ऑफ अ सेल ड्यूरिंग विच सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है. कैसे प्रिपेयर करता है? बाय सिंथेसाइजिंग डीएनए, जिसको हम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं. सिंथेसाइजिंग को हम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं. सिंथेसाइजिंग का मतलब डीएनए बनाना. सेल ग्रो होता है साइज में और फिर डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल. आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेल, अभी इसमें क्लीवेज हो रहा है और फिर 2 डॉटर सेल बन गए हैं. सेल ग्रोथ जो है, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज बोलते हैं. नाउ यू नो अबाउट अ सेल, कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है. सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ढेर सारा साइटोप्लाज्म होता है, जो कि फ्लूइड पार्ट है सेल का. तो ये जो साइटोप्लाज्म है, उसी के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये राइबोसोम्स, ये सारे क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं. तो कोई भी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड पार्ट, और ये फ्लूइड पार्ट के अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. तो अगर मैं कहूंगी कि मुझे एक सेल को डिवाइड करना है 2 सेल में, तो मुझे हर एक चीज डबल करना पड़ेगा, है ना. 2 न्यूक्लियस होना पड़ेगा, हाँ, साइटोप्लाज्म तो हो ही जाएगा अपने आप 2, उसके साथ साथ 2 माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे, तभी तो यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया आएगा और यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया आएगा.
दो गोल्गी बॉडीज होना चाहिए, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, तब तो एक सेल का एग्जैक्ट कॉपी दो सेल बनेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये सारा जो प्रिपरेशन है, हाँ, उसको हम एक नाम देंगे, वो भी आप पढ़ोगे। यस, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल में क्या होता है, सारा प्रिपरेशन होता है, मतलब हर एक चीज डबल होने लगता है। हाँ, और मेन इवेंट क्या है सेल साइकिल का? सेल डिवीजन, जो कि है माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, सो सेल ग्रोथ is a continuous process, but DNA synthesis occurs only at a specific stage. This point is very important. At which stage we will be learning in detail कि DNA कब बनता है, कब occur होता है, उसका बनना कब होता है। Then duration of cell cycle varies in each organism and each cell type. यस, तो हम एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बता सकते कि इतने ही टाइम में सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है और हर एक सेल टाइप में भी अलग अलग होता है। जैसे कि अभी हमारे लिवर का जो सेल है उसका डिवीजन का टाइम अलग होगा, ब्लड सेल्स का डिवीजन का टाइम अलग होगा, तो दैट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गन टू ऑर्गन और सेल टाइप ऑल्सो। ठीक है, next, Yes, duration. Yes, duration of a typical karyotypic cell. We are studying about a general thing of a human cell is about 24 hours. So in 24 hours, a eukaryotic cell, जैसे कि human cell हो गया है, वो divide करता है। पर जबकि हम yeast की बात करते हैं, तो yeast में just it takes 90 minutes for cell division. मतलब एक yeast दो yeast में बदल सकता है in just 90 minutes. Is that very clear, beta? Okay. Now let us learn in detail about this cell cycle. मिस वो लिखना था मिस, What? वो पीछे का लिखना था। No, no, beta. You are having everything in your textbook. ओके मिस। All of you are having. All of you have bought your textbook. yes, ma'am. So whenever lecture is going on, beta, I request all of you to open your textbook. Okay. So I will give you 2 minutes time. Go and get your textbook, page number 76. And in every lecture, you should be with your textbook. Go and get your textbook fast. मिस 2 मिनट पीछे पर ऐसे स्क्रीनशॉट लेता हूँ। अच्छा, okay. मिस बोलो बेटा। मैंने टेक्स्ट बुक नहीं लिया, मेरे पास पीडीएफ है, वो पीडीएफ से पढ़ता है। अच्छा अच्छा, बट आई ऑलवेज यस मैम, मैंने भी नहीं लिया है। ले लो, ज्यादा मोबाइल देखना अच्छी बात नहीं दुकान है। चालू नहीं है, दुकान चालू नहीं है ना। हाउ कम दुकान नहीं चालू है? एवरीवेयर दुकान इज चालू। आप कौन सी जगह पे रहते हो ऐसा कि दुकान नहीं चालू है? एवरीवेयर ऑल शॉप्स आर ओपन। वो मार्स में रहता है। हाँ यस, मार्स पे रहते हो, बराबर है तभी। मैम कुछ लिखना नहीं है ना इसमें? नहीं। ओके, सो those who have already taken your textbook, take out page number 76 of your textbook. Yes, miss. Okay. होमवर्क मैं at the end of the lecture आपको दूंगी क्या होमवर्क करना है। Now listen properly about the cell cycle. ठीक है, जिसका ऑलरेडी पढ़ के हुआ है आप लोग अपना रिवीजन करो, और जो न्यू है प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। Okay, now let us talk about this cell cycle in detail. Now a diagram which has been seen on your screen. What does this diagram say? The M phase. M phase is the actual cell division. Yes, M phase, please note down karo, M phase is the actual cell division. तो M मतलब या तो माइटोसिस होगा या फिर दूसरा M मतलब या तो मियोसिस होगा। तो अगर मैं माइटोसिस बोल रही हूँ इसका मतलब मेरे सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, और अगर मैं मियोसिस बोल रही हूँ दैट मींस इट इज स्पेसिफिकली टेकिंग प्लेस इनसाइड द रिप्रोडक्टिव सेल। इज दैट वेरी क्लियर? सो द मेन पार्ट ऑफ द सेम सेल साइकिल इज द सेल डिवीजन। एम क्या बोला आपने? हाँ, मिस वो एम का क्या बोला? M phase is the mitosis or meiosis. Okay.
चलो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जो नहीं लिखा है वो लिख लो। आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये क्या है? सेल का साइकिल है। साइकिल हम किस चीज को बोलते हैं? जिसका एंड पॉइंट नहीं होता, वो रोटेट चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। तो ये सेल साइकिल में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई पुट द कर्सर और ओवर हियर, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एम फेज आपको नजर आएगा। तो ये जो एम फेज है, यही क्या है? सेल डिवीजन का फेज है। प्लीज नोट डाउन, एम फेज इज द सेल डिवीजन फेज। और एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है या तो माइटोसिस, अगर वो सोमैटिक सेल में हो रहा है, या फिर मियोसिस, अगर वो रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है। Am I very clear with all these things? ठीक है, M means either mitosis if it is taking place in somatic cell, or M means meiosis if it is taking in the reproductive cell. इतना क्लियर? अच्छा, तो अब मैंने क्या बताया कि ये जो M फेज है, यही क्या है? मेन फेज है, दैट इज अ सेल डिविजन फेज। उसके बाद आप देख सकते हो G1 लिखा है, एक बीच में एक स्टेज दैट इज G0, उसको अभी बाद में, अब इसको छोड़ दो, ठीक है? अभी पहले G1 पे फोकस करो। G1 S G2 एंड M, फिर वापस G1 S G2 M। तो ये जो फेज आपको नजर आ रहा है G1 S एंड G2, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन होता है इस माइटोसिस का या मियोसिस का। वेरी क्लियर? तो G1 में क्या होता है, S में क्या होता है और G2 में क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है कि G1 में क्या कौन कौन सी चीजों का प्रिपरेशन होता है, S फेज में किस किस चीजों का सिंथेसिस होता है, और सिमिलरली G2 में कौन कौन सी चीजों का सिंथेसिस होता है, और फिर जो मेन इवेंट है माइटोसिस और मियोसिस क्या है। So in this particular topic, you have to learn what happens in G1, what happens in S phase, and what happens in G2. And then you have to learn in detail what is mitosis, what are the phases of mitosis, what is meiosis, what are the phases of meiosis. And then you have to learn the distinguish between mitosis and meiosis. Apart from that, you have to learn in short about this G0 phase also. Very clear? So this is what we have going to learn in this particular topic. तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि जो सेल साइकिल है उसमें दो फेजेस है। ये यहां से लेके यहां तक, मतलब G1 S and G2, ये पूरे को हम बोलते हैं इंटरफेज, और ये वाला जो है दैट इज द M phase. Very clear? So the cell cycle has two phases. ठीक है? Cell cycle has how many phases? It has two phases. What are they? Yes, Astha. Interphase and M phase. Yes, very good. Interphase में कौन कौन से phases होते हैं? G1 and S. G1 S and G2. S phase, G2 phase. Very good. G1 phase, S phase and G2 phase. Very clear बेटा. Okay, और M phase में कौन कौन से होते हैं? अगर सोमैटिक सेल में हो रहा है तो कौन सा होगा? Mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis. नहीं, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा अच्छे से? Mitosis only. It's mitosis only. ओके, तो अगर सोमैटिक सेल में हो रहा है तो माइटोसिस ओनली, अगर रिप्रोडक्टिव सेल में होगा तो Meiosis. ओके। तो नाउ लेट अस लर्न अबाउट कि व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग इन G1 एंड ऑल दिस थिंग्स। चलो ठीक है, गुड। Let us learn the first one, that is the interphase, which is also called as resting phase. I can say that it is a stage which is present between two successive cell division. अभी एक डिवीजन हुआ, फिर इंटरफेज होगा, फिर सेल डिवीजन होगा, फिर इंटरफेज होगा। तो या तो मैं इसको रेस्टिंग फेज बोल सकती हूँ क्योंकि मेन फेज तो M फेज है, या तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि इंटरफेज इज द स्टेज बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। एक बार सेल डिवीजन हुआ, इंटरफेज, फिर वापस सेल डिवीजन हुआ, फिर इंटरफेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस तो बहुत जल्दी से हो जाता है, पर ये प्रिपरेशन में ही बहुत टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में
कोई बड़ी पार्टी है, यस, या कोई बड़ा इवेंट है, तो उसके प्रिपरेशन के लिए महीने लग जाएंगे, पर वो इवेंट कितने दिन का होगा, एक दिन का होगा या 8 दिन का होगा, है ना। सो दिस इज हाउ द सेल साइकिल इज हैपनिंग, ठीक है। तो इंटरफेज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पर ये जो इवेंट है, जो सेल डिवीजन है, वो तो बहुत जल्दी से हो जाता है। So similarly, the interphase, this can be asked as a MCQ in the exam. So which is the longest phase? So the interphase is the longest phase of the cell cycle. ठीक है, and we know that कि यहाँ पे बहुत सारा preparation हो रहा है, तो it is highly active phase. Next point. Please note down. It is highly active phase, and what happens? The cell prepare itself for the cell division. ठीक है, so it has two phases. I don't understand. हाँ, मुझे नहीं समझा। अच्छा, इंटरफेस समझा बेटा क्या है, कहाँ से नहीं समझा है मुझे बताओ, कितना समझा है आपको? मिस वो इंटरफेस का उसके बाद में आपने जो समझा है ना वो नहीं समझा। हिमांगी, यस। ओके, इंटरफेस क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज इंटरफेस? यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज इंटरफेस। मिस G1S and G2। हाँ, तो इंटरफेस में अभी मैंने बताया मेन इवेंट क्या है इस सब के अंदर, सेल साइकिल के अंदर। मिस नहीं समझ में आ रहा है। मेन इवेंट क्या है सेल साइकिल का? मेन इवेंट क्या है? मेन इवेंट क्या है, क्या होता है? सेल डिवीजन इज द मेन इवेंट ना। अभी इसके पहले का स्लाइड क्या दिखाया मैंने? मिस इधर उधर घूम के मत पढ़ो, एक ही जगह बैठ के पढ़ो, ठीक है। अचानक से आप घूम फिर के आ रहे हो और फिर बाद में अचानक से बोलोगे कि नहीं समझेगा, तो फिर हाउ इट इज बीन डन। अभी जस्ट नाउ एक्सप्लेन्ड यू ना कि सेल साइकिल में 2 फेजेस है। आर यू नोटिंग डाउन हिमांगी? यस मिस। तो ये नोट डाउन किया था आपने? यस मिस। तो फिर आपको क्यों नहीं बताने आया कि इंटरफेज एंड एम फेज? यस, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस है। नहीं समझा है तो अभी वापस पूछो और अच्छे से सुनो। सेल्स, आप अपना वीडियो ऑन करो तो। हिमांगी प्लीज ऑन योर वीडियो, आई जस्ट वांटेड टू सी व्हाट यू आर डूइंग। ओके, चलो। सो सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस हैं। यस, एक होता है इंटरफेज। अभी मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, समझो फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे पार्टी और बहुत बड़ा बर्थडे पार्टी करने वाले, तो आपके बर्थडे पार्टी के लिए प्रिपरेशन 1 महीना पहले होगा, प्रिपरेशन होगा कि नहीं? और बर्थडे पार्टी कितने देर के लिए होगी? फॉर एग्जांपल 4-5 घंटे का आपका बर्थडे पार्टी है, पर उसके लिए प्रिपरेशन क्या हुआ? 1 महीने से प्रिपरेशन हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई मीन टू से? सो सिमिलरली इंटरफेज जो है वो प्रिपरेशन फेज है। यस, ये प्रिपरेशन है, एंड योर बर्थडे पार्टी इज दिस एम फेज, जो थोड़े टाइम के लिए होता है। अभी आपको क्लियर है? अच्छा, अभी ये बर्थडे पार्टी आपको नहीं बोलना एग्जाम में। व्हाट यू हैव टू से, एम फेज इज नथिंग बट दिस माइटोसिस और मियोसिस। यस, जो बर्थडे पार्टी को मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो बर्थडे पार्टी क्या है एक्चुअली? इट कैन बी आइदर माइटोसिस if it is happening in our somatic cell, or it may be meiosis if it is happening in our reproductive cell. Now is it clear? अभी समझ में आया एग्जाम्पल के साथ? अच्छा, फिर मैंने क्या बताया आपको, अभी हम ये बर्थडे पार्टी को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आपके एम फेस को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस योर प्रिपरेशन, दैट इज वी आर लर्निंग फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरफेस। अभी समझा? Yes, so we are going to learn the first topic, that is interface. तो मैंने क्या बताया आपको इंटरफेस में कि ये एक रेस्टिंग फेज है। क्यों मैं रेस्टिंग फेज बोल रही हूँ? क्योंकि ये साइकिल है ना बेटा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होते जा रहा है। मतलब एम फेज होगा, फिर इंटरफेज होगा, फिर एम फेज होगा, फिर इंटरफेज होगा, करेक्ट है? तो आई कैन से दैट इंटरफेज, आई कैन से इट इज अ रेस्टिंग फेज, बिकॉज मेन फेज इज द एम फेज। एम फेज को ही हम सेल डिवीजन भी बोलते हैं, एम फेज को ही सेल डिवीजन बोलते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, सेल डिवीजन मतलब सेल एक्चुअली डिवाइड हो रहा है, और वही आपका मेन इवेंट है कि सेल डिवाइड होके 2 सेल बन गया, पर उसके लिए ये सारा इंटरफेज हुआ, ये सारा प्रिपरेशन हुआ।
इसके लिए इंटरफेस को आप रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? अभी दो इसके बीच में होता है इंटरफेस। वेरी क्लियर द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है अभी देखो, इट इंक्लूड्स, इंटरफेस में होता क्या क्या है, सेल ग्रोथ होता है और डीएनए का सिंथेसिस भी होता है, क्योंकि हमें डीएनए भी तो दो करना है ना। जब एम फेज आएगा मतलब माइटोसिस करेगा जब सेल, तो जब एक डीएनए का दो डीएनए होना चाहिए, दो माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, दो सारे दो होंगे ना, तभी तो एक का दो सेल बनेगा और वो दोनों भी सेम होंगे। इज दैट वेरी क्लियर बेटा? यस। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेज में सेल ग्रोथ होता है और सेल का डीएनए का सिंथेसिस होता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है अभी हम वेरी स्पेसिफाई करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज होता है। इट लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, सबसे बड़ा फेज है। अभी जैसे मैंने आपको बर्थडे पार्टी का एक एग्जांपल बताया कि इंटरफेस जो है प्रिपरेशन ही सबसे 1 महीना 2 महीना चलता है, पर वो इवेंट तो 5 घंटे का है। वेरी क्लियर? वैसे ये इंटरफेस इज द लॉन्गेस्ट फेज, 95% ऑफ सेल साइकिल। अभी मैंने बताया कि एक सेल साइकिल को होने के लिए, सेल डिवीजन को होने के लिए 24 आवर्स लगता है। तो जस्ट इमेजिन कि 24 आवर्स में से इमेजिन दिस 22 आवर्स इज क्या हो रहा है, इंटरफेस हो रहा है, और जस्ट 2 आवर्स में एम फेज होके साइड में हो जा रहा है। अब क्लियर है सब चीजें? ठीक है, नहीं समझे तो प्लीज आस्क मी बेटा। ना यू कैन ऑफ योर वीडियो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी, यू कैन इफ यू वांट यू कैन ऑन योर वीडियो आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, नाउ एज इट इज बीन गिवन इन द स्क्रीन, इंटरफेस के भी 3 फेजेस हैं। यस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। अब हम उसका फुल फॉर्म भी समझेंगे, तो प्लीज राइट डाउन एंड नोट डाउन। ये पहले लिख लो, पहले इंटरफेस हैज 3 phases, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। नोटेड? चलो नाउ नो मिस रुको। अच्छा ओके ओके ओके, राइट डाउन। Okay, I hope now it will be done. It must have been done. पहले हम G1 फेज पढ़ते हैं। G1 फेज को एक और नाम से बोला जाता है, तो उसका अलग नाम भी लिखो। यहाँ पे तो आपने देखा, उसको G1 भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे G1 भी लिख सकते हैं, पर what is the full form of that? So write down. It is also known as first gap period. G1 is, पहले heading डालो G1 phase, put a heading G1 phase, put a slash. It is also called as what? First gap period. First gap period, या फिर it is also called as first growth period. First growth period, या तो gap period या तो growth period। ठीक है, फिर आप क्या मुझे बताओगे G1 के बारे में? आप देख सकते हो स्क्रीन पे ही कि इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर एम फेज, एम फेज के बाद ही तुरंत स्टार्ट होता है। यस, अब आपको पढ़ना है कि G1 फेज में होता क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इट इज अ फर्स्ट ग्रोथ। लिखना है? हाँ, नहीं लिखना है, अब समझना है, सुनो अभी सिर्फ। ठीक है, देखो G1 फेज को मैंने क्या बताया, इट इज अ फर्स्ट गैप पीरियड और फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है? इमीडिएटली आफ्टर एम फेज। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या क्या है देखो, इट इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मेन इवेंट्स क्या क्या है? तो कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ सेल होता है यहाँ पे, सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है, प्रिपेयर्स मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब
डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए को डबल करना है, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए डबल होगा, ठीक है। रेप्लिकेशन मीन सिंथेसिस भी बोल सकते हो आप, मतलब डीएनए वापस और एक डीएनए बनाने के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन होता है। मतलब डीएनए कहाँ बनेगा, सिंथेसिस फेज में डीएनए बनेगा, पर उसकी भी तैयारी जीवन फेज में होगी, ठीक है। वेरी क्लियर बेटा। नेक्स्ट, और क्या क्या चीज होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। हाँ, आरएनए के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये सब बनता है जीवन फेज में। साथ साथ में प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है। तो ये सब चीज आपको याद रखना जरूरी है कि जीवन फेज में क्या क्या तैयारी होती है। तो क्या क्या तैयारी हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो जो भी चीजों की जरूरत है उसका प्रिपरेशन हुआ, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। इस समय क्योंकि ये सारा प्रिपरेशन हो रहा है, इसीलिए ये सेल बहुत ही एक्टिव है और यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल हो रहा है। वेरी क्लियर, ग्रोथ ऑफ सेल में सेल बड़ा होते जा रहा है। वेरी क्लियर बेटा जीवन फेज सबको। तो मैं अगर आपको पूछूंगी कि G1 फेज कब स्टार्ट होता है, तो व्हाट शुड बी योर आंसर, द G1 फेज स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन। राइट आंसर, ठीक है। सेल G1 फेज स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन, दैट शुड बी योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन, इफ आई ask you what are the main events of G1 phase, so you should be giving me this 4 points. Continuous growth of cell is active. If you don't remember the word metabolically, you can avoid it, you can just write down cell becomes very active. Then there is a preparation for DNA. आप preparation बोलोगे, हाँ, you will not write synthesis DNA replication take place, तो वो दोनों अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन का, और साथ में सिंथेसिस हो रहा है आरएनए एंड प्रोटीन्स का, ठीक है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, विच आरएनए, 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरआरएनए, ठीक है। वो सब आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे या फिर आपने अपने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी, ये तो हो गया जीवन का। अब हम चलते हैं एस फेज में क्या क्या होता है। तो एस फेज में लेट अस सी कि क्या क्या होता है। तो एस फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। अभी हमने बताया कि इंटरफेज ही लॉन्गेस्ट फेज है। अब इंटरफेज में भी एस फेज सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर हमने इंटरफेज के 3 फेजेस को कंपेयर किया तो उसमें से भी एस फेज सबसे बड़ा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ऑफ ऑल द कॉलेजेस, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन विच फेज? सो द आंसर शुड बी सिंथेसिस फेज ऑफ इंटरफेज। वेरी क्लियर। अच्छा, अब आप रेप्लिकेशन हो रहा है मतलब कि डबल सेंटेंस रिपीट करो। what I have asked you, DNA replication takes place in which phase of cell cycle? I will give you all the questions, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस देने वाले और उसके आंसर आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में दिखाओगे, so that you will read the text book, ठीक है। So मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, DNA replication takes place in which phase of cell cycle? So the answer to your question should be DNA replication takes place in synthetic phase of interphase। तो क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, डीएनए 2 बन गया। क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितना क्रोमोसोम नंबर है उतना ही फिक्स रहेगा, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उतना ही रहता है क्रोमोसोम का नंबर। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स। व्हाट इज सेंट्रियोल? व्हाट इज द यूज ऑफ सेंट्रियोल? एनीबॉडी? माइटोसिस और मियोसिस में रहता है वो। यस, वेरी गुड। सेंट्रियोल जो है ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है, प्लीज नोट डाउन। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर। Organizing of chromosome. yes,
अभी जो नए हैं उनको सुनने दो बेटा. यस, वेरी गुड. यस, व्हाट आई वाज टेलिंग कि सेंट्रियोल जो है, यस, इट इज अ सेल ऑर्गेनेल which is present in the cytoplasm of the cell. सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल. ठीक है. ये सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर बनाता है जिसके ऊपर क्रोमोसोम अटैच होते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस. तो अभी के लिए आप इतना समझ के लो कि सेंट्रियोल अगर नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो सेंट्रियोल का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द सेल डिवीजन. तो सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है, ये भी 2 बनते हैं. ठीक है. आप देख सकते हो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, 1 से 2 बन गया, ये भी 1 से 2 बन गया. हाँ, और फिर बाद में सेंट्रियोल भी 2 बन जाता है इन द साइटोप्लाज्म. अच्छा, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में. जबकि सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है, डुप्लीकेशन कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में. ठीक है. सो एस फेज को क्या बोला जाता है? सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं या फिर सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं. और इसका मेन फोकस क्या है? डीएनए सिंथेसिस या फिर डीएनए रेप्लिकेशन भी आप बोल सकते हो, जहां पे डीएनए डबल होता है. और प्रोटीन भी बनता है एक टाइप का जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि डीएनए में होता है. डीएनए और आरएनए में एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन. हैव यू लर्न अबाउट डीएनए एंड आरएनए इन योर 10th स्टैंडर्ड बेटा? Yes, ma'am. Yes. Yes. यस. अच्छा, तो आपको ये हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पता होगा कि दिस इज अ डीएनए न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन. मेरे नहीं था हम लोग को. No. नहीं मालूम ऐसे कैसे मिस. पॉसिबल है बेटा? डीएनए नहीं, मेरे नहीं था. वो सीबीएसई करेगा. What हम is लोग very SSC. different? What is very different? मैम अच्छा बहुत ठीक है. डिफरेंट था, न्यूक्लिक एसिड था. अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो. तो न्यूक्लिक एसिड जो है ना, जो कि हमारा डीएनए और आरएनए है, उसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन. तो चलो अभी आप 11th-12th में डिटेल में पूरा पढ़ लोगे. ठीक है, उसका डोंट वरी. तो अभी इतना याद रखो कि मैंने आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताया. हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो डीएनए और आरएनए में होता है. ठीक है. तो डीएनए डबल हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन डबल हो रहा है, और क्या डबल हो रहा है? सेंट्रियोल डबल हो रहा है. तो ये क्या हो गया अपना सिंथेटिक फेज. तो अब जब भी मैं आपको सिंथेटिक फेज का क्वेश्चन पूछूंगी तो आप मुझे क्या बताओगे कि मैम उसमें 3 चीज डबल होता है. डीएनए डबल हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन डबल हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, एंड सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो रहा है. हाँ? ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ G2 फेज. म्यूट योरसेल्फ. ओके. सो G2 फेज का फुल फॉर्म क्या है? इट इज अ सेकेंड ग्रोथ फेज. नोट डाउन, सेकेंड ग्रोथ फेज. Yes, so it is called as the second growth phase. Now what will happen over here? The cell grows continuously. Synthesis of RNA and protein is taking place again. अभी यहाँ पे किस चीज का सिंथेसिस हो रहा है? आरएनए का. तो प्लीज नोट डाउन करो, आरएनए 2 जगह सिंथेसाइज हो रहा है. G1 में भी हुआ था आरएनए का सिंथेसिस और G2 में भी हो रहा है आरएनए का सिंथेसिस. प्लस प्रोटीन मैंने आपको वहां पे भी बताया था, G1 में भी बताया था कि प्रोटीन का सिंथेसिस G1 में भी होता है एंड सिमिलरली प्रोटीन का सिंथेसिस G2 में भी होता है. अभी G2 के बाद ही क्या आएगा? माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा. तो इट इज प्रिपेयर्ड फॉर आइदर माइटोसिस और द मियोसिस. वेरी क्लियर? यस. यस. तो जस्ट हैव अ लुक, वापस एक बार देख लो आप. तो ऑल ऑफ यू हैव क्लियर्ड विथ ऑल द फेजेस. हम सेल साइकिल पढ़ रहे हैं. सेल साइकिल के अंदर जस्ट अ मिनट बेटा. सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज. उसमें से अभी हमने इंटरफेज पढ़ने के लिए शुरुआत की है. तो इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस, सॉरी, इंटरफेस के अंदर भी 3 फेजेस होते हैं. व्हाट आर दे? G1, S एंड G2. S and G2.
ये आपको सीक्वेंस में ही बोलना है बेटा, ऐसा नहीं कि आपको याद आ गया पहले आप S बोलोगे, फिर आपको याद आ गया आप G1 बोलोगे, फिर आपको याद आ गया आप G2 बोलोगे. नो, इट शुड बी इन सीक्वेंस. G1, S and G2, इट शुड बी इन सीक्वेंस. ठीक है. सो पहले हम लोग वापस G1 रिवाइज करके लेते हैं. G1 फेज में क्या होता है? इट इज फर्स्ट गैप फेज और द फर्स्ट ग्रोथ पीरियड. यहाँ पे क्या होता है? डीएनए की प्रिपरेशन. वेरी गुड. डीएनए रेप्लिकेशन का प्रिपरेशन होता है. यस, वेरी गुड बेटा. सेल ग्रो होता है, सेल एक्टिव होता है, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस. वेरी गुड, वेरी क्लियर बेटा. आरएनए सिंथेसिस एंड यस आशुतोष, आरएनए का सिंथेसिस एंड प्रोटीन का सिंथेसिस. ठीक है. Now next is the synthetic phase. It is the longest phase of the interphase. यहाँ पे एक्चुअल डीएनए का सिंथेसिस होता है या रेप्लिकेशन होता है, साथ में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है. यस, यस, एंड हिस्टोन प्रोटीन. वेरी गुड बेटा. G2 फेज में क्या बताया मैंने? G2 फेज में आरएनए सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, सेंट्रियोल हमें दिखने लगेगा. यस, और क्या है? सेल इज नाउ प्रिपेयर्ड फॉर द एम फेज. वेरी क्लियर. इसके बाद है जो एक्चुअल एम फेज है. तो एम फेज में भी दो है, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस. ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस. तो अगर हम माइटोसिस के बारे में बात करेंगे तो इट इज द एक्चुअल सेल डिविजन. इन ह्यूमन सेल इट लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर. सो एम फेज इंक्लूड्स, ये भी हम अभी डिटेल में, आज मैं ये नहीं आपको बताऊंगी. इसके अलावा आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद द G0 फेज के बारे में आपको मुझे एक्सप्लेन करना है. ये भी अच्छे से सुनो. Now just have a look what it has been given on the screen. Now some cell do not show division. Example, our heart cell. Please note down. Some cell they do not show cell division, जैसे कि अपना heart cell है. But many other cells divides only occasionally to replace the damaged or dead cells. है ना. और कुछ cells जो है वो कभी कभी क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. क्यों? अगर समझो कोई चीज डैमेज हो गया तो वो कभी कभी डिवाइड कर रहे हैं. तो हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है कि हर एक सेल हर दिन सेल डिविजन कर रहा है. उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है. तो यू डोंट हैव टू गो इन द कैटेगरीज. ठीक है ना. अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड ही नहीं होते हैं और कुछ सेल्स जो है वो कभी कभी डिवाइड करते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. अगर वो डेड है तो, अगर वो डैमेज है तो वो डिवाइड करेगा. तो देखो, द सेल दैट डू नॉट डिवाइड, हाँ, फर्दर एग्जिट, बाहर निकल जाता है. G1 फेज से ही वो बाहर निकल जाता है एंड एंटर इनएक्टिव स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्विसेंट स्टेज बोलते हैं. प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज अ क्विसेंट स्टेज. ठीक है. सच सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट पॉलीफरेट. पॉलीफरेट मतलब प्रिपेयर नहीं होते हैं. ठीक है. तो ये जो कंडीशन है G0 कंडीशन, ये भी होना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो अगर सेल डिवीजन होते ही रहेगा तो हम जाइजेंट बन जाएंगे, है ना. तो ऐसा नहीं होता है. हमारे हर एक बॉडी के ऑर्गन्स में, हाँ, सेल में, टिश्यूज में, उसमें एक कंट्रोल मैकेनिज्म है कि कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है. जहां नहीं करना होता है वहां पे ये सेल ऑटोमेटिकली G1 से एग्जिट हो जाएगा और G0 फेज में चला जाएगा, जिसको हम क्विसेंट स्टेज बोलते हैं. उस समय G0 स्टेज में क्या होता है? वो सेल एक्टिव होता है बट वो पॉलीफरेट नहीं होता, मतलब कुछ चीज प्रिपेयर नहीं करता, ना डीएनए सिंथेसिस करेगा ना कुछ करेगा. इज दैट वेरी क्लियर बेटा? अच्छा, अगर यही अनकंट्रोल्ड हो गया, समझो, यस, अगर यही चीज कोई भी सेल अनकंट्रोल्ड हो गया, मतलब उसके अंदर कोई क्विसेंट है ही नहीं, कोई वहां पे रोकने टोकने वाला ही नहीं है कि कब बंद होना है कब चालू होना है. कंटिन्यूअसली ये साइकिल चलते ही जा रहा है, मशीन चलते ही जा रहा है. तो क्या होगा? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल हो जाएगा. यस. और इसी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? इट लीड्स टू ट्यूमर एंड ट्यूमर इज नथिंग बट द कैंसर. इज दैट वेरी क्लियर बेटा? यस. सो तन्मय बेटा, एक जगह बैठ के पढ़ाई करते हैं, घूम के नहीं करते हैं. कहाँ जा रहे हो आप? तन्मय,
Where are फैन you ऑन कर roaming? रहा था, हाँ फैन ऑन, फैन ऑन। हाँ, करो करो। ओके, सो एम आई वेरी क्लियर? चलो तारा बताओ मुझे तन्मय, व्हाट इज क्विसेंट स्टेज? What तन्मय, happened? explain me quiescent stage. What is quiescent stage? Fast. अरे फैन ऑन करे तो सुन तो रहे थे ना, पैर से चल रहे थे। बोलो बोलो फास्ट तन्मय। बेस हाँ बोलो अमन। मैं G1 से G0 में जाते हैं, सिर्फ उधर क्या होता क्या उसका? कुछ नहीं होता है, बस वो सेल मतलब एक्टिव रहता है, बस ऐसे ही पड़ा रहता है, वैसे ही रुका रहता है ऑर्डर सेल आने तक। जमा हो जाते रहेंगे ना? अरे बेटा सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा तो जमा कैसे होंगे? मैम जैसे आप बोले G0 फेस में मतलब वो कुछ होता नहीं है, बस उधर सेल रहते हैं थोड़े टाइम के लिए। सेल नहीं रहते बेटा, सेल जो है वो एक्टिव है। यू प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। सेल जमा नहीं रहता है। अभी एक सेल है, सेल के अंदर ये सारी चीजें हो रही है, एक सेल के अंदर ये सब चीजें हो रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बेस एक Yes, बार ma'am. और रिपीट करो ना अच्छे से। देखो सेल जो है, सेल के अंदर ही सेल साइकिल होगा, तभी एक सेल से दो सेल बनेंगे। ठीक है, समझो आपके उंगली है, ठीक है, आपकी फिंगर्स है। अब आपका फिंगर जितना ग्रो करना था उतना ग्रो कर गया, पर वहां का जो आपका समझो फिंगर है, वहां पे अगर ये G0 फेज नहीं होगा तो क्या होगा? आपका फिंगर और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके पैर के जितना बड़ा हो जाएगा। समझा? Yes, miss. हाँ, तो वो G0 जरूरी है ना वहां पे, कि फिंगर्स का ग्रोथ अब हो चुका है, अब उसको बड़ा नहीं करना है। समझो आपका कान है, कान के अंदर अगर ये G0 फेज नहीं होगा तो आपका कान तो बढ़ते ही जाएगा, अनलिमिटेड बढ़ता जाएगा, कितना भी बड़ा हो जाएगा, आपका नोज भी अनलिमिटेड बड़ा हो जाएगा। आर यू गेटिंग द थिंग व्हाट आई मीन टू से? तो G0 फेज इज दैट फेज जहां पे सेल को अब पता है कि अब बस अब रुकना है, अब नहीं कुछ करना है। पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कान पे चोट लग गई, आपके नाक पे चोट लग गई, तो फिर ये जो G0 है वो वापस एंटर करेगा इन G1 फेज, और फिर ये सिंथेसाइज करेगा, और जो वहां पे आपको चोट लगी है नाक पे उसका रिपेयर होगा, और फिर वो वापस G0 में चला जाएगा। आपको समझ में आ रहा है अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब हाँ प्रोलिफरेट मतलब मिस? बताया ना, प्रिपरेशन। प्रथमेश आपको समझा मैं क्या बता रही हूँ? पॉलिफरेशन छोड़ दो, वो मतलब उसका वर्ड का मतलब छोड़ो, आपको इनर मीनिंग समझा कि क्या हो रहा है एक्चुअली? प्रथमेश केदार, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? So there is some controlling, something is there which will say now you have to do the cell division, and there is something which is say now अभी आपको नहीं करना है, अभी आप रेस्ट करो। ठीक है, सो जो हमारा बॉडी पार्ट्स है वो प्रॉपर बॉडी पार्ट्स है। वो क्यों प्रॉपर बॉडी पार्ट्स है? क्योंकि हमारा हर एक सेल जहां पे जरूरत है वो G0 में एंटर कर जाता है, और जब जरूरत पड़ती है, जब समझो हमें कहीं चोट लग गई तो वहां पे वापस रिपेयरमेंट की जरूरत है, तो फिर ये G0 जो है वो G1 में एंटर करेगा। यू कैन सी द एरो मार्क ओवर हियर। ये G0 वापस G1 में एंटर करेगा, फिर S करेगा, फिर G2 करेगा, माइटोसिस करेगा, सेल रिपेयर हो गया, फिर G0 में चला जाएगा। आर यू गेटिंग द थिंग्स? Yes, miss. Okay, so I'm very much clear about the things. So let me tell you the word meaning. Proliferation का मतलब होता है बायो में प्रिपरेशन। So यहाँ पे G0 फेज में वो एक्टिव है मतलब जैसे कि हमारे सोल्जर्स है, जब तक काम नहीं है तब तक वो बैठे हैं, पर वो एक्टिव है ना, कि एकदम सुस्त पड़े हैं। Yes, they are active. जब भी उनको बुलावा आएगा वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो सिमिलरली ओवर हियर ये सेल्स जो है इन G0 फेज ऐसा नहीं है कि वो इनएक्टिव है, वो एक्टिव है,
पर जब जरूरत पड़ेगी तो वो फटाफट पॉलिफरेशन करेंगे, मतलब फटाफट प्रिपरेशन में लग जाएंगे। आर यू गेटिंग द थिंग्स? ठीक है। सो मिस our body is बैकअप such- मतलब बैकअप जैसा ना, बैकअप जैसा ना, हाँ बैकअप हाँ, yes, backup, correct. You can't say a backup beta, it is a mechanism, on and off mechanism, you can't say a backup. ठीक है। बैकअप का मतलब होता है कि स्टोरेज, इट इज नॉट अ स्टोरेज, इट इज व्हेन इट इज नेसेसरी, इट इज बीन डन, नहीं है तो वो ये रहेगा। ठीक है, चलो। ओके सो आई होप, अच्छा अब ये मैंने क्या बताया आपको, जैसे अगर किसी को कैंसर है तो लंप फॉर्मेशन होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, गांठ होता है। तो ये गांठ क्यों होता है? जब ये G0 ही अपना काम भूल जाता है, मतलब ये सेल साइकिल में अगर ये सेल साइकिल होते ही रहेगा होते ही रहेगा होते ही रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, सेल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और एक क्या बन जाएगा, एक लंप बन जाएगा या फिर एक ट्यूमर या फिर एक गांठ बन जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। वेरी क्लियर बेटा? सो व्हेन there is absence of this G0 phase, the cell cycle will go on and go on, and this may lead to the formation of tumor, or else we can say as the cancer. So uncontrolled growth of cell, cancer को बोला ही कैसा जाता है, define किया जाता है as uncontrolled growth of cells. There is no control only on cell division. Very clear? So this is what we have learned today. Homework for all of you. So please note down the homework. Note down the homework. Write down fast. सबसे पहला, you have to draw the cell cycle which has been given on page number 76 of your textbook. Figure 7.1. Next homework. Name the phases of cell cycle. Name the phases of cell cycle. Next. What is interphase, or define interphase? Next question. Which is the longest phase of cell cycle? मैम आपने बोला which is the longest phase, तो ये explain भी करना है? नहीं, one Short. answer in one sentence. हाँ, answer in one sentence. Okay मैम. जहाँ पे explain करना होगा बच्चा, I will tell you. रिपीट करो. Which is the longest phase of cell cycle? Next question. Name. सिर्फ नाम बोला है मैंने लिखने के लिए. Name 3 sub phases of interphase. Name 3 sub phases of interphase. Next, DNA replication takes place in which phase? DNA replication takes place in which phase? Next, what is G2 phase also called as? What is G2 phase also called as? Miss, Can you repeat this question? G2 phase is also called as? 6th question, ma'am. I don't remember. क्या DNA बोला? replication take place in which? DNA replication takes place. I don't have a question. मैं randomly questions बोल रही हूँ अभी आपको. Next. मिस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे? Yes, obviously ना. आपको पेपर पैटर्न पता है ना. You will be having MCQs. You will be having one sentence question. अभी तो मैं सारे one sentence आपको दे रही हूँ. आपका one sentence हो जाएगा तो MCQ भी हो जाएगा पढ़ के.
चलो, M stands for dash and dash. M stands for dash or dash. मेटाफेस और मेटाफेज Mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis. Mitosis है and ये मैंने Meiosis. क्वेश्चन नहीं Meiosis. पूछा है, मैंने ये आपको होमवर्क के लिए पूछा है, मैं आपको अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रही. राइट डाउन. सॉरी Next, what is quiescent stage? You can see the spelling from the screen. What is quiescent stage? या फिर put a slash, also called as G0 phase. What is quiescent stage or G0 phase? मिस एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या बोला अभी? What is quiescent stage or G0 phase? Explain. अभी इसको explain करना है. What is quiescent stage or G0 phase? Explain. क्या बोला मिस वापस बोलो. अभी आप अपने फ्रेंड से पूछ लो, ठीक है? What is quiescent stage also called as G0 phase? Explain. हाँ वो लिखा है. तो बस हो गया, इतना ही है. उतना ही है. हाँ, तो अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, यस, आपका टुमारो यू विल अगेन